The topic is membranous nephropathy. The reason ये topic हम लोग discuss कर रहे हैं is because this is very important. It's not even important from MCQ point of view. ये long case में बहुत important topic है and it always comes. So it's important कि FSGS इतना नहीं आता, minimal change भी नहीं आता, MCQs में आ जाते हैं वो. But membranous जो है that is very important. हम last time भी like जब मेरा exam था तो उसमें भी membranous का case था. So that's what we're going to emphasize on this. ठीक है? अच्छा membranous nephropathy सबसे पहले what's important is that you need to know कि what is membranous. Does it come in the nephrotic or in the nephritic? Well, all of you know कि it is a part of the nephrotic syndrome. And ये क्या चीज़ है? It is an immune complex disease. What do I mean by that? इसका मतलब ये है कि what happens is जो kidney है, we all know that it's got these podocytes, right? तो podocytes के ऊपर antigens होते हैं. Antigens के खिलाफ we have antibodies. Those antibodies are going to go, they're going to get attached to those antigens, form an antigen antibody complex. And uske baad, there is immune complex जो है mediated complement activation होती है. And then there's a cascade of reactions जिसकी वजह से the membranous picture comes. That is podocyte injury. You will have सारा जो foot process effacement है, membrane thick हो जाता है, and there's protein leak. That is generally the pathogenesis of membranous. Lekin if somebody asks you, it's an immune complex disease. Now, all of you know कि membranous जो है, उसके दो types हैं. One is a primary, one is a secondary. Primary more common, it is about 80%. Primary ही होता है. जो बाकी हैं, that's secondary. ठीक है? Dr. Sunil, next slide कर दें, please. अच्छा अब यहाँ पे जो है दिस इज अ टिपिकल ये आपकी फिहाले की ही पिक्चर है यू मस्ट बी ऑल वेरी फेमिलियर विद दिस इफ यू हैव डन फिहाले दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जब आपका लॉन्ग केस होता है द एग्जामिनर का पूछना नहीं आपने मरीज से सवाल करने होते हैं राइट सो उसमें यू नीड टू रूल आउट ऑल द सेकेंडरी कॉजेज बाय आस्किंग देम क्वेश्चन वन बाय वन तो अगर आपने सारी कॉजेज नहीं पूछी होती सो दैट्स व्हेन द एग्जामिनर इज गोइंग टू पॉइंट आउट कि यू डिड नॉट रूल इट आउट यू डिड नॉट रूल आउट सेकेंडरी प्राइमरी तो आप उससे फ्लावर लेवल्स पूछ लेते हैं पेशेंट कभी बताता है कभी नहीं बताता बट सेकेंडरी में यू नीड टू रूल आउट द कॉजेज व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कॉजेज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर ओके नंबर वन आपको पता है कि लूपस इज गॉट दिस क्लास 5 जो लूपस है उसमें इट प्रेजेंट्स एज अ मेम्ब्रेनस सो यू नीड टू आस्क द पेशेंट अबाउट लूपस नेफ्राइटिस और उसके जो फीचर्स हैं सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ ऑटोइम्यून डिजीजेस में लूपस नेफ्राइटिस वेरी इंपॉर्टेंट सेकेंडरी मेम्ब्रेनस की कॉज है uncommon if you remember if you ask it's not that important but just for your general knowledge rheumatoid का पूछ लें autoimmune IgG4 disease अच्छा this is one crescenteric gene anti-GBM ANCA you need to concentrate on this sometimes a patient is going to come with a membranous nephropathy वो आपको हिस्ट्री दे रहा होगा कि मुझे 4 सालों से प्रोटीन आ रही है and my flour levels are इतने and then all of a sudden he lands in ER and he's in RPGN उस वक्त आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि तो मेम्ब्रेनस था एंड मेम्ब्रेनस डजंट प्रेजेंट एज एन आरपीजीएन लेकिन व्हाट हैपेंस इज कि सेकेंडरी के अंदर व्हाट हैपेंस इज कि पेशेंट को मेम्ब्रेनस तो चल रहा होता है एंड ही इज वेरी ससेप्टेबल टू डेवलपिंग एंटी जीबीएम एंड एंका जब उसको मेम्ब्रेनस के ऊपर एंटी जीबीएम हो जाता है एंका इज गोइंग टू प्रेजेंट विद एन आरपीजीएन एंड दिस वाज अ लॉन्ग केस दैट हैड कम दिस टाइम लॉन्ग केस में पेशेंट को बैकग्राउंड में मेम्ब्रेनस था और उसके ऊपर पेशेंट ER में presented with full blown renal failure. He had anti-GBM on top of that. So this is a very important cause of a person with a membranous nephropathy and then he getting anti-GBM. तो ये दो diseases आपको पता होनी चाहिए कि patient with membranous can get anti-GBM and ANCA. This is associated with that. इसके अलावा you can ask about different infections like Hep B, Hep C, HIV, syphilis. Malignancies, solid tumor malignancies, especially colorectal cancer, breast cancer. You need to ask the patient lung cancer. Very patients with these solid tumors are also at a very high risk of getting MN. फिर ड्रग्स में सारी NSAIDs, COX-2 inhibitors, रूमेटॉइड की पुरानी जो ट्रीटमेंट्स थी लाइक गोल्ड ये यूज अब नहीं होती हैं but still you need to ask the question gold penicillamine and mercury containing compounds these are all the skin whitening जो creams हम यूज करते हैं उसके अंदर होती हैं so people that use these creams they're also susceptible to getting membranous ठीक है इसके अलावा sarcoidosis anti-cationic ये this not that important just आपको पता होना चाहिए कि people with sarcoid are also at a risk of getting MN
Now, alloimmune में that you need to remember is कि जब पेशेंट का ट्रांसप्लांट हो जाता है, although they might not have membranous as a primary disease, they can get de novo membranous. उनको डेवलप हो सकती है और उसके पीछे जो कॉज है दैट इज alloimmune. अच्छा, नेक्स्ट जो स्लाइड है दिस इज पैथोजेनेसिस. पैथोजेनेसिस मैंने इसलिए थोड़ा सा इस बार बनाया है क्योंकि हमारे जो टॉक्स थे उसमें पैथोजेनेसिस के ऊपर पूरे पूरे स्टेशन थे जो कि हम लोग कॉन्सेंट्रेट नहीं करते, सो यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस एज वेल. अच्छा, पैथोजेनेसिस आई एम गोइंग टू से इट इन सिंपल वर्ड्स. हमारे पास दो किस्म के हैं, ठीक है. वन वाज एन एक्सपेरिमेंटल मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी है और एक जो है वो आपकी ह्यूमन में मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी की पैथोजेनेसिस है. एक्सपेरिमेंटल में क्या मतलब है? दिस मीन्स के रैट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन हुई थी जिस पे दे केम आउट विद दिस मॉडल कॉल्ड द ह्यूमन नेफ्राइटिस मॉडल. ह्यूमन नेफ्राइटिस मॉडल में क्या था? दे एक्सपेरिमेंटेड विद द रैट्स के जो बेसमेंट मेम्ब्रेन थे किडनीज के, उसमें एक एंटीजन था कॉल्ड द मैगेलन. एंड उन रैट्स दैट डेवलप मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी, उनके अंदर एंटी मैगेलन एंटीबॉडीज थी. सो फ्रॉम दिस दे केम टू द कंक्लूजन कि दिस इज लाइक एन ऑटो, इसमें this is an immune complex disease because even in the rats मैगेलन के खिलाफ मैगेलन एंटीबॉडीज बनी थी. उन्होंने आपस में कॉम्प्लेक्स बनाया. वंस द कॉम्प्लेक्स वाज फॉर्म्ड, वहां पे वो कॉम्प्लेक्स अपनी जगह से दैट इज फ्रॉम द पोरोसाइट इट शेड्स डाउन, बेसमेंट मेम्ब्रेन में वो एम्बेड हो जाता है and it stays in the basement membrane for weeks to months. And while it's in the basement membrane, it's going to start a cascade of या complement activation शुरू हो जाती है and there's then triggers a cascade of various reactions जिसकी वजह से what happens, आपका जो पोडोसाइट है उसका एक्टिन साइटोस्केलेटन कोलैप्स हो जाता है. इसके अलावा जो पोडोसाइट और बेसमेंट मेम्ब्रेन के बीच में एडहीजन मॉलिक्यूल्स हैं वो लूज हो जाते हैं. There is loss of slit diaphragms. All of this leads to food process effacement, proteinuria. एंड जो आपके कॉम्प्लेक्सेस पेशेंट के बेसमेंट में द रैट के बेसमेंट मेम्ब्रेन पे एम्बेड हुए थे, उसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन में मैट्रिक्स प्रोडक्शन शुरू हो जाती है. इनिशियली दे हैव स्पाइक्स एंड देन इवेंचुअली वो स्पाइक्स भी आपस में मिलकर मेम्ब्रेन को थिक कर देते हैं. सो यू हैव अ टिपिकल प्रेजेंटेशन ऑफ अ पेशेंट विद फूड प्रोसेस इफेसमेंट एंड थिकनिंग ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन. Then this is a human membranous nephropathy. इसमें क्या था कि initially there was this very unusual case जिसमें there was a pregnant female, उसके fetus को membranous nephropathy हो गई थी. उसकी region क्या थी कि the fetus had this NEP antigens on its basement membrane. So the first baby that the woman had, उसमें तो she made the antibodies against that NEP antigen of the fetus. When she got pregnant the second time, those antibodies that were already present in the mother, they went and attacked the fetus and the fetus developed membranous nephropathy. So from all of this, they've come to the conclusion that this is